students, welcome to you all. Hi, this is Neha Bhatia and now in 12th class accounts we are on the topic ad premium. So students, we have done first topic of accounting of share capital, issue of share capital. First topic we have done, that is at par, means the basic journal entries. And students, those basic journal entries जो at par वाला केस होता है, those entries are the base of the whole chapter. All the further topics, all the further cases, सबका base है वो entries. So first understand those basic entries, then you will be able to do the further topics. Okay, so which topic we have already done? At par. Again I will explain you. At par case is when the company one share value, nominal value is ₹10 and company is issuing on the same price पे issue कर रही है अपने share 10 का 10 पे 100 जितना भी है. At premium case is when company issues its shares more than the nominal value of share. Share के nominal value या face value जिसे हम कहते हैं 10 है, but the company wants to issue its share more than that. इससे ज़्यादा पे issue करना चाहती है. Suppose they are issuing at ₹14 पे issue कर रही है. So these ₹4 extra which company is taking, this is for premium. किसके लेती है? प्रीमियम. जनरली वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी डू दिस, जो बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हो जाती हैं. देन द कंपनी इशू इट्स शेयर मोर देन इट्स नॉमिनल वैल्यू. सो दिस केस इज कॉल्ड एट प्रीमियम. सो व्हाट हैपन्स जनरली कंपनी टेक्स दिस एक्स्ट्रा अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट, विद द इंस्टॉलमेंट, अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट. विद अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट्स आई हैव रिटन द क्वेश्चन इन शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में लिखा है मैंने क्वेश्चन. दैट कंपनी इशूड 35,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. कितने शेयर इशू किए? 35,000. 10 उसकी वैल्यू है, बट ऑन एप्लीकेशन कंपनी विल टेक द अमाउंट, कंपनी विल टेक द अमाउंट ₹3 एंड ऑन अलॉटमेंट कंपनी विल टेक ₹5 एंड इन विच प्रीमियम इज ऑलरेडी इंक्लूडेड. प्रीमियम इसमें इंक्लूडेड है एंड ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी विल टेक ₹4. Suppose the premium amount is not given to you, so you can take out yourself. How? The total is 3 + 5, 8 + 4, 12. 12 हो गई, but the one share value is ₹10 given. It means the extra ₹2, जो extra ₹2 हैं वो किसके हैं? प्रीमियम के हैं. So it means allotment installment जो है वो आपकी 3 + 2 है. 3 allotment के हैं और 2 किसके हैं? प्रीमियम के. So what I was telling you that generally company takes this premium amount with the allotment installment, but they rarely the company can take with the application also and with the calls also, but generally it happens that company takes with the allotment. या फिर तीनों में भी हो सकता है, कुछ भी. All the information will be given in the question that company is taking the premium amount with which installment. Okay, so this is called premium case. This is the question of premium case. So let's start the journal entries. तो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं. ऑल द जर्नल एंट्रीज विच आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट पार्ट, बेसिक एट पार केस, ऑल द जर्नल एंट्रीज आर सेम, ओनली द प्रीमियम केस विल बी डिफरेंट. थोड़ा सा डिफरेंस होगा बस, दैट्स इट. इवन इन ऑल द फर्दर केसेस विच वी विल स्टडी इन इशू ऑफ शेयर कैपिटल, बेस तो वही रहेगा जर्नल एंट्रीज जो हमने पढ़ लिया है. अकॉर्डिंग टू द केस सम डिफरेंसेस विल बी देयर इन द एंट्रीज. बस इतना होगा, ठीक है. बहुत ईजी है, कुछ नहीं है. फर्स्ट एंट्री किसकी होगी? फर्स्ट 2 एंट्रीज एप्लीकेशन की होंगी. दोबारा बता देती हूँ, फर्स्ट वीडियो में बताया था दैट एप्लीकेशन में फर्स्ट वी टेक द मनी, मतलब कंपनी क्या करती है? पहले पैसे लेती है. तो क्या होगी पैसे लेने की एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट. एंड फॉर व्हाट कंपनी इज टेकिंग मनी? फॉर एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट. सो वी विल राइट हियर टू शेयर application account. You write complete words. Okay, so amount will be how many shares? 35,000. तो 35,000 into 3 के अकॉर्डिंग अमाउंट आ जाएगी दोनों में 1,05,000, 1,05,000. Narration you write yourself. Being application money received. After receiving the application money, what we do? We transfer the application money in share capital account. So first we will debit the share application account. डेबिट टू किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? शेयर कैपिटल में. सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट 1,05,000. नाउ अलॉटमेंट एंट्री. Allotment entry we will do with
premium also. So the changes will be there in the allotment entry. allotment entry में होंगे जो भी changes होंगे. allotment केस में allotment इंस्टॉलमेंट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी ड्यू द अमाउंट देन वी रिसीव द अमाउंट. तो जब हम ड्यू कर रहे हैं कंपनी में allotment के अकाउंट, देन वी विल शो इन द एंट्री दैट हाउ मच अमाउंट ड्यू फॉर allotment इंस्टॉलमेंट एंड हाउ मच अमाउंट इज ड्यू फॉर प्रीमियम. कितनी अमाउंट स्पेसिफिकली हम उसमें एंट्री में शो करेंगे कि कितनी अमाउंट अलॉटमेंट की ड्यू है और कितनी सिक्योरिटी प्रीमियम की है. सो व्हाट विल बी द एंट्री. वैसे नॉर्मल एंट्री क्या होती थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ये हम एंट्री करते हैं अलॉटमेंट के ड्यू होने की. ठीक है. सो अलॉटमेंट में अब एक चीज़ और है, वो क्या है, प्रीमियम. तो उसमें प्रीमियम में क्या कहाँ आ जाएगा, टू में आ जाएगा. कैसे आएगा, किस नेम से आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. कैसे आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. इसे हम क्रेडिट करते हैं बिकॉज दिस इज द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. ओके. सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो नॉर्मल एंट्री हम करते थे. देन टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. रिजर्व में रखते हैं. वाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, दिस इज अ रिजर्व स्टूडेंट. वाई, बिकॉज विच एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी इज टेकिंग एज प्रीमियम. प्रीमियम की तरफ से जो कंपनी एक्स्ट्रा अमाउंट पब्लिक से ले रही है, द पब्लिक विल यूज दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन शेयर होल्डर्स या बोनस शेयर जैसे इशू करते हैं उसमें यूज़ करती है. मींस ये शेयर्स में ही यूज़ होता है. कंपनी अपने किसी खुद के बेनिफिट के लिए इस अमाउंट को यूज़ नहीं करती है. किस लिए यूज़ करती है, या तो उस अमाउंट से वो कंपनी उसके बोनस शेयर मतलब एक रिजर्व रखती है बना के कभी भी शेयर होल्डर्स के लिए या शेयर्स के थ्रू जो कैपिटल बनती है उसके लिए अगर किसी अमाउंट की ज़रूरत पड़ी तो वो किस में से, इस रिजर्व में से अमाउंट को उसको यूज़ करेंगे. ठीक है. तो इसलिए हम इसका क्या बनाते हैं, रिजर्व अकाउंट बनाते हैं. और रिजर्व अकाउंट क्या होते हैं, हमेशा क्रेडिट. तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. अब अमाउंट टोटल अलॉटमेंट में तो हमें पता है टोटल कितनी अमाउंट ड्यू हो रही है जो डेबिट में जा रही है. टोटल 35,000 इंटू 5 के हिसाब से 1,75,000. ठीक है. कैपिटल में कितनी जाएगी बताया ना, जो प्रीमियम से अमाउंट आता है एक्स्ट्रा वो कभी भी शेयर कैपिटल में नहीं बनता है. शेयर कैपिटल तो उतने की बनेगी, टोटल 35,000 इंटू 10 3,50,000 की ही बनेगी. ठीक है. एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप 2 रुपीज़ का ले रहे हैं वो दैट अमाउंट विल गो इन द प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, नॉट इन द कैपिटल अकाउंट. दैट्स वाई द कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ओनली विद अलॉटमेंट मनी. जितनी अलॉटमेंट मनी है आपकी कितनी है, 3 रुपीज़, उसके हिसाब से ही क्रेडिट होगा. तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो आएगी 35,000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग. ठीक है. और जो एक्स्ट्रा मनी आप ले रहे हैं टू प्रीमियम वो जाएगी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में. फाइन. सो दिस इज द चेंज. बहुत छोटा सा चेंज जो है वो सिर्फ किस में होगा, विद द एंट्री इन विच वी ड्यू द अमाउंट, जिसमें हम अमाउंट क्या करते हैं, ड्यू करते हैं. सपोज द प्रीमियम इज देयर विद द एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट, सो यू विल डू दिस प्रीमियम एंट्री विद दिस entry, second entry, because in the second entry you are transferring the application amount in the share capital account. तो शेयर कैपिटल में आप पूरी तो ट्रांसफर नहीं करेंगे, कितनी करेंगे, सिर्फ शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन की जो अमाउंट होगी प्रीमियम की आप प्रीमियम के अकाउंट में डालेंगे. ऐसे ही कॉल में भी अगर प्रीमियम है तो उसकी भी सेम एंट्री किस में होगी, ड्यू वाली में प्रीमियम की एंट्री होगी. जहां हम मनी रिसीव करते हैं वहां हम प्रीमियम कुछ नहीं शो करते, वहां तो हम यही शो करते हैं दैट वी आर रिसीविंग द कंप्लीट मनी. नाउ वी विल डू द एंट्री ऑफ receiving of allotment money. So the simple entry will be done that bank account debit to share allotment account. पूरा ही कर देंगे कितने के हिसाब से, 35,000 इंटू 5 मीन्स 1,75,000, 1,75,000. बिकॉज दिस एंट्री इज फॉर रिसीविंग मनी. हमने रिसीव तो 1,75,000 ही किए हैं पब्लिक से, और हमने यहाँ शो कर दिया कि जो हमने टोटल 1,75,000 हमने रिसीव किए हैं उसमें से 1,05,000 तो किसके हैं, कैपिटल के हैं जो अलॉटमेंट की मनी है. ठीक है. और 70,000 है वो प्रीमियम के, इसलिए हमने प्रीमियम के रिजर्व अकाउंट में उसको रख दिया है. दैट्स इट. नाउ नेक्स्ट एंट्री विल बी फॉर द कॉल. सो सेम एंट्री विल बी देयर
First for due, that share first call account debit to share capital, then for receiving money bank account debit to share first and final call. So this small change only there, only you have to see that premium is given in with which installment, बस उसी के साथ उसकी ड्यू एंट्री में करनी है, ध्यान रखना है। अमाउंट रिसीव की एंट्री में नहीं करनी है, सिर्फ ड्यू वाली एंट्री में प्रीमियम की एंट्री करनी है। ओके, आई होप दिस केस इज क्लियर टू यू। नाउ द फर्दर मीन्स द नेक्स्ट केस वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।